Hi everyone, welcome in 9 lecture of bacteriology. In this lecture, we are going to see about method of prevention of bacterial spoilage. What method we can use for preventing bacterial spoilage? There are different methods are given in this chapter. So first of all, we will discuss about icing. By icing, we can preserve a fish from bacterial spoilage. Then second is freezing. By freezing, we can preserve fish from getting spoiled. Then by drying, we can also protect. Likewise, by heat processing and use of antibiotics. These kind of 5 methods or like that 5 methods are given in this method of preservation of bacterial spoilage in KK Balchandran. So line to line we will explain each and everything. So first of all we will see about icing. The benefit of icing include rapid cooling of the fish, slows bacterial and enzymatic activity, flushes away bacterial as it melts, prevent drying, delays rigor mortis for improved texture and resist freezing in cold weather for improved texture. So जब क्या होता है अगर फिश लाए किसी किसी फिश को हमने ले आया मार्केट से, I bought some fish from market and then I kept it in ice. Why people like why most of the fishermen keep fish in ice? So the reason behind it is simple method is that in tropical condition ice fish will remain good in condition for few days. हम बोल सकते हैं आइस जो है फिश को कूल रखता है और कूल रखने की वजह से उसमें की जो इंजाइमेटिक एक्शन होता है वो जो स्पॉइल करने के लिए आफ्टर डेट ऑटोलाइसिस वाला वो इंजाइमेटिक एक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑटोलाइसिस क्या होता है और जब बैक्टीरिया जब फिश डेड होती है कैसा अटैक करते हैं स्लिम पे अटैक करते हैं फिर गिल्स पे लाइकवाइज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटेस्टाइनल एब्डोमेन पे अटैक करते हैं तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं वेस्क्रेशन करते हैं और आइस में फिश को रखते हैं by doing this we can protect the enzymatic activity these away bacteria and melts prevent dying due to this हम क्या कर सकते हैं बैक्टीरिया का अटैक को प्रिवेंशन कर सकते हैं कंटिन्यू इन स्टोरेज will result in increase in साइक्रोफाइल्स अगर हमने ज्यादा देर तक ऐसे ही फिश को अगर ऐसे आइस में रखा तो क्या होता है साइक्रोफाइल्स बैक्टीरिया जो कोल्ड लविंग बैक्टीरिया होते हैं वो अटैक करने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं विच कैन थ्राइव द टेम्परेचर ऑफ आइस स्टोरेज एंड consequently spoil the fish at some stage come that at which the fish gets spoiled after keeping in ice also. So this is the all about icing. So next, we will discuss about freezing. So wrap the fish in moisture vapor resistance paper or place in freezer bag. Label and freeze water place fish shallow metal foil plastic pan. As name suggests, freezing. Freezing मतलब हमें क्या करना है फिश को ले जाकर फ्रीजर में रखना है एक हमें क्या करते हैं प्लास्टिक का पैन लेते हैं या बॉक्स लेते हैं उसमें फिश को रखते हैं और हम उसको ले जाकर फ्रीज में रखते हैं ले जाकर फ्रीज में एज इट इज रखते हैं सो इस वजह से क्या होता है जो अंदर के एंजाइमेटिक एक्टिविटी है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी या बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है कम्प्लीटली बोल नहीं सकते बट एट सम स्टेज तक वो स्टॉप होने लगती है सो ये एक सी बास का फिलेट्स है ये एक इसको हमने एक बॉक्स में पैक किया है और इसको हम फ्रीजर में रखते हैं सो एक्चुअली फ्रीजर में रखने से क्या होता है व्हाट बेनिफिट्स आफ्टर कीपिंग इन फ्रीजर सो लेट्स सी first of all long term method of preserving fish as in case of icing it was a short term for short duration we can keep the fish in ice condition but long term method of preservation of fish is freezing for transportation we use just mostly for transportation of fish from one country to another country we use freezing method at all freezing binds water into crystal and making it not available for bacterial actions तो यहाँ पे बताया गया है अगर एक फिश है एग्जाम्पल लीजिएगा एक फिश है इस तरह की एक फिश है इस फिश को हमने क्या किया फ्रीजर में रखा लाइक वी केप्ट दिस फिश इन फ्रीजर सो क्या होता है इन सच कंडीशन जो इसके अंदर क्या होता है जो बचा कुचा वाटर है प्रेजेंट दिस इज वाटर हम बोल सकते हैं ये बचा कुचा वाटर जो है इसके बॉडी में ये वाटर क्या में कन्वर्ट होता है आइस में कन्वर्ट होता है इट कन्वर्टेड इनटू आइस सो इन सच कंडीशन व्हाट हैपन ये आइस में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है ये जो वाटर है ये बैक्टीरिया क्या करते हैं उसका यूज कर नहीं सकते बैक्टीरिया सो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती सो बैक्टीरिया फॉर प्रोडक्शन या फॉर डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया दे रिक्वायर
what we say, they require water. So for such condition, they did not, if not getting water at enough amount, they does not survive or does not multiply. In such condition, they stay at go on the dormant condition. So next, in sentence, during freezing, the temperature of fish is brought down to sub-zero level, -20 to -40 Celsius, and then stored at similar temperature. जब हम फ्रीजिंग करते हैं तो जो फिश का जो सब जीरो टेम्परेचर लेवल होता है -20 से लेके -40, ये बहुत कम तक है। -20 से -40 मतलब फ्रीज पूरा स्टफ बन जाएंगे फिश में, जो भी फिश के अंदर वाटर प्रेजेंट है, वट एवर इट इज, वो पूरी तरह के में कन्वर्ट होने वाला है, यहाँ पे पूरा आइस में कन्वर्ट करने वाला है। सो बैक्टीरिया के लिए चांस ही नहीं है वो वाटर यूज करने के लिए। सो फ्रीजिंग रिड्यूस द इनिशियल बैक्टीरियल लोड बाय 60 to 90 degrees, 60 to 90%. Okay. Take example here explaining that the fish, if we using if we fish, if we are using fish for freezing purpose, in such condition the bacterial load is 60 to 90% get reduced. If it is 100%, it gets reduced to 60 to 90%. So it is good for freezing the fish. Freezing caused death or considerable reduction in the viability of several bacteria. Some bacteria does not able to survive in -20 to -40 degrees Celsius. In such condition, the death of considerable reduction in viability of several bacteria occurs. At sub-zero temperature, the activities of remaining bacteria also come stand still, and hence fish keep well over a very long period. अगर कुछ बैक्टीरिया बच भी जाते हैं in such condition, they go on under dormant condition and they does not able to survive, or some bacteria does not able to multiply in such condition. So this explain about freezing in this sentences. So let's see about drying. You can see drying, एक यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा। क्या था, मैं एक बार फिश मार्केट फिश मार्केट को गया था, वहां पे मैंने देखा कि जो फिशरमैन है या फिश सेलर है, तो वो क्या कर रहे थे, फिश को सुखाकर बेच रहे थे, उसको अलग अलग प्राइस में बेच रहे थे। सो वहां पे मैंने नोटिस किया हाइजेनिक लेवल 0 था। हाइजेनिक लेवल नाम को ही था। यहाँ पे आप लेडी देख सकते हैं, ये लेडी डायरेक्टली फिश पे पैर रख रही है और डायरेक्टली शी जस्ट soaking that fish and drying that fish in the presence of sunlight, and this baby is playing with that fishes. It's not at all good. If you are drying the fishes now, you just use different kind of medium. If you are using sun, then keep that all place clean, and after stall should be clean, and the place where you are keeping that fishes for the purpose of selling, it should be clean. So indirectly इन इंडिया ड्राइंग प्रोसेस को ज्यादा बेचते हैं लोग, बट ड्राइंग प्रोसेस को एज कम्पेयर टू ज्यादा प्रमोशन नहीं है, लोग प्रेफर नहीं करते खाने के लिए ड्राइंग प्रोसेस वाले फिशेस। सो दीज आर द रीजन बिहाइंड इट इज। सो ड्राइंग एक अनदर है, हम ड्राइंग से अलग अलग फिश बेचते हैं, जैसे कि सुखाकर पूरे फिश बेचते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कैसे किया जाता है। प्रोसेस लाइक ड्राइंग, sorry, here is drying, it's by mistakenly drying, salting, smoking, etc is done. It involves the principle of reduction the water activity of fish to a level at which they cannot survive. So हमें हमारा एक मेन मोटो यहाँ पे यही है कि हमें जो फिश में का वाटर है उसको पूरा कंप्लीटली कम कर देना है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको चांस ही नहीं मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। उनको वाटर नहीं मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। सो सनलाइट के एनर्जी में जो सन की जो सन रेज होते हैं, वो क्या करते हैं, फिश का जो वाटर है उसको रिमूव करवाते हैं। सो ड्राइंग प्रोसेस कन्वीनियंट फॉर प्रिजर्विंग द फिश फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. Then we will see about heat processing. Bacteria can be destroyed or their count reduced by food by subjecting to the food to the heat treatment. यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिश को क्या किया है, एक हमने उसको क्या हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस फिश को। इस वजह से इसमें का जो भी पानी वाटर है वो पूरा कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा, और इस वजह से फिश की जो बैक्टीरिया के लिए वाटर चाहिए वो नहीं मिलेगा एट सब टाइपल कंडीशन है या ऑप्टिमम कंडीशन में उसे नहीं मिलेगा। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द कैनिंग प्रिजर्वेशन ऑफ फिश एट द नॉर्मल टेम्परेचर एम्प्लॉयड इन कैनिंग मोस्ट बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड। हाउएवर द एम ऑफ कैनिंग इज नॉट अचीव एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो कमर्शियल स्टेरिलिटी। यहाँ पे हमें दिखाना है कि कैनिंग के टर्म में ये हीट प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट इन कैनिंग ज्यादा फेमस है। ये एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी के लिए अच्छा है, ऑल्सो फॉर कमर्शियल स्टेरिलिटी।
एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी इससे हम एक्चुअली हासिल नहीं कर पाते उतना अच्छा खासा इन कैनिंग प्रोसीजर के टर्म्स में हमने बताया। तो कमर्शियल स्टेरिलिटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। कमर्शियल स्टेरिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी, ये कैनिंग के नेक्स्ट ये थर्ड या फोर्थ लेक्चर में के भालचंद्रन में ही इसको मैं अच्छे से तब एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो इसके यहाँ पे यही ध्यान रखना है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन कैनिंग प्रिजर्वेशन ऑफ फिश। बैक्टीरिया कैन बी डिस्ट्रॉयड इन देयर, कैन नॉट रिड्यूस फूड बाय सब्जेक्टिंग टू फूड टू हाई ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हीट प्रोसेसिंग या टेम्परेचर का हीट प्रोसेसिंग का टेक्निक का सहारा लेते हैं यहाँ पे। So this implies that heat treatment should be sufficient to destroy all pathogens present, and the remaining ones should be sufficient to destroy all pathogens present, and remaining ones remain dormant and should not be multiply in that can. हम जो ट्रीटमेंट यूज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया अगर मर भी गए, जैसे कि थर्मोफिल फाइल्स होते हैं जो बैक्टीरिया टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, अगर पूरे बैक्टीरिया मर भी गए या पूरे बैक्टीरिया डेथ हो गया पूरे बैक्टीरिया का, इनकेस कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव भी रह गए तो वो डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएंगे और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इन टर्म ऑफ कैन प्रॉपरली प्रोसेस कैन फिश शुड कीप वेल मिनिमम फॉर 2 years। अगर हमने कैन फूड या डब्बे वाला पैकेट बोलते हैं, टूना फ्लेश, टूना फिलेट्स, ऐसे डब्बे वाले कैनिंग प्रोसेस वाले पैकेट्स होते हैं, कैन फूड होते हैं। हम उस कैन फूड को क्या करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्वेशन के लिए हम कैनिंग का सहारा लेते हैं, जिसमें हम हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं। पास्चराइजेशन इज अनदर मेथड फॉर ब्रिंग द पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। ये पास्चराइजेशन टेक्निक भी हम यूज करते हैं, जो हम क्या करते हैं इस टेक्निक से, बैक्टीरिया को हमने हाई टेम्परेचर या हाई 100 डिग्री सेल्सियस या लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको टेम्परेचर करते हैं और सडनली उसको कोल्ड करवाते हैं। तो पास्चराइजेशन टेक्निक लुईस पास्चर का हमने एक्सपेरिमेंट देखा था स्टार्टिंग में। लुईस पास्चर ने क्या, स्वैन ने एक ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट लेक्चर 01 जाके आप देख सकते हो। Pasteurization is another method that bring about partial destruction of bacteria by application of heat. By using heat, we can destroy the partial destruction of bacteria. The reduction in the number of bacteria slows down the development of spoilage flora and delay spoiling. हम क्या करते हैं यहाँ पे द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्लोज डाउन द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉइलेज फ्लोरा एंड डिले स्पॉइलेज। तो हम क्या करते हैं, इस हीट ट्रीटमेंट की वजह से जो स्पॉइलेज फ्लोरा की वजह से हो रहा था उसको हम डिले कर सकते हैं इस प्रोसेस को बाय हीट ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हर टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इसमें भी अच्छा खासा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फिशेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट टेट्रासाइक्लिन, देन क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड क्रोमफेनिकॉल। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं, सॉरी एंटीबॉडीज बोल रहा हूँ मैं, एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स इस टर्म में ही हमें पूरा मीनिंग मिलता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स, बायोटिक्स मीन्स बायोसिस मीन्स लाइफ, against life. Against life means these tetracycline, chlorotetracycline, oxytetracycline, and chloramphenicol we are using against the bacterial life. So we called it as antibiotics used for extended shelf life against gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. We are using these antibiotics against gram positive bacteria and gram negative bacteria. You can see here, this is gram positive bacteria and gram negative bacteria. We are using against this bacteria, have no effect on yeast and molds. The effect of these antibiotics is does not occurs in yeast in case of molds. Molds पे और yeast पे इसका कुछ असर नहीं होगा antibiotics का. Tetracycline residues are destroyed by heat, therefore considered safe in food consumed after heating. However, it is possible that their use may induce resistance in microorganisms against them when used clinically in human or animal medicines. तो क्या होता है, अगर एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, इस पे हमने टेट्रासाइक्लिन यूज किया, बट हम टेट्रासाइक्लिन डायरेक्टली बैक्टीरिया पे यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, हमने एक पॉन्ड में ये टेट्रासाइक्लिन का रिसाइड्यू डाल दिया, तो इसमें जो फिश होते हैं उनके बॉडीज पे भी चला जाएगा ये टेट्रासाइक्लिन। सो इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर के जो बैक्टीरिया फिश के ऊपर के है वो डाई करने लगे, या आफ्टर हम हार्वेस्टिंग इस टेट्रासाइक्लिन को लिया हमने और एक प्लेट में लिया पूरे फिश को कैच करके, हम उस पे टेट्रासाइक्लिन का हमने यूज किया डायरेक्टली, तब क्या होता है, ये टेट्रासाइक्लिन हमारे अब्डोमन में जाने के चांसेस होते हैं। सो इन सच कंडीशन हम क्या करते हैं, वो फिश को कुक करते हैं अच्छे से और फिर बाद में हम उसको यूज करते हैं।
तो अगर हमने इसी टेट्रासाइक्लिन को बार बार अगेंस्ट यूज करने लगे हम फिश के, तो एक सेम कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें फिश के अंदर खुद के एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है इस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। और इन सच कंडीशन अगर इन सच कंडीशन क्या होता है, ऐसे कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे फिश को इस एंटीबायोटिक्स का फर्क ही नहीं पड़ता। सो डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल टोटली रॉन्ग है इन इंडिया। It should be a general law. So this is about antibiotics. In next chart, we will see about in treating fish with antibiotics, the best result obtained when fish treated immediately after catch. एंटीबायोटिक्स कब अच्छा कारगर साबित होता है? यहाँ पे एक फिश है, इस फिश को हमने पॉन्ड से कैच किया और हमने उस पे इमीडिएटली क्या किया, एंटीबायोटिक्स का छिड़काव किया। मीन्स हमने डायरेक्टली एंटी वी यूज हियर एंटीबायोटिक्स डायरेक्टली after catching the fish. After catching the fish, we use antibiotics in it. Therefore, the convenient and most effective method is application means ice or chilled water in which the fish is held. तो कन्वीनियंट मेथड क्या होता है, जब हम आइस को जब आइस में और चिल्ड वाटर में जब फिश को डालते हैं, हम उसमें डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स का छिड़काव करके यूज कर सकते हैं। आइस कंटेनिंग 1 ppm CTC has been found to bring about substantial improvement in keeping quality when compared to keeping in normal ice. एक CPC एक पर्टिकुलर टाइप का आइस होता है, ये CPC CTC has been found to be bring about substantial improvement in keeping quality when compared to keeping in normal ice. ये एक 1 ppm CTC एक आइस अलग टाइप का आइस है, जिसमें आइसी है बट वो एक अलग पीपीएम वाला आइस है, जिसमें हम फिश को रखते हैं तो उसकी कीपिंग क्वालिटी कंपेयर टू अदर से अच्छी खासी होती है। डिपिंग इन सॉल्यूशन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं हर एक पे छिड़काव नहीं कर सकता। मैंने इस सॉल्यूशन में एंटीबायोटिक्स का पूरा सॉल्यूशन भर के रखा, इस फिश को डायरेक्टली मैंने इसमें डिप करवाया और डिप करवा के मैंने उसको डायरेक्ट फिर पैक करवा कर सेल करवाने के लिए भेज दिया। सो बाय दिस मेथड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ कर सकते हैं हम फिश की। फिश एंड शेल फिश और फिश के लिए ये दो एक ही यूज किया। जैसे कि प्रॉन को मैंने कैच किया, ये प्रॉन डायरेक्टली आई एम अनएबल टू ड्रॉ दी डायग्राम एक्यूरेटली। एक एग्जाम इमेजिन कीजिएगा, ये है प्रॉन, प्रॉन को मैंने कैच किया, डायरेक्टली मैंने इस एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डुबाया एंड देन डायरेक्टली आई स्टार्टेड सेलिंग दिस पैकेजिंग एंड देन सेलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स nowadays are applied by this different kind of fishermen in countries, but इसको भी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स मीन्स अगेंस्ट दी लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ के भी अगेंस्ट हो सकता है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा है। बट यहाँ पे यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ इट्स इज आउट ऑफ द JRF syllabus, like you can say it's not given in KK Balchandran book, but it should be known for our point of view. Anti means अगेंस्ट, बायोसिस मीन्स लाइफ। हम एंटीबायोटिक्स एक्वाकल्चर में यूज कर रहे हैं, देन फिर हमने उसको मार्केट में ले जाकर बेच दिया वो फिश को, फिर वो फिश को लोग क्या करते हैं, चाइनीज जापानीज कल्चर या चाइनीज कल्चर में उसे अच्छा सा कुक नहीं करते, उसको सिर्फ बॉयल वाटर में या सम वाटर स्टीम पे उसको कुक करवाते हैं। इन सच कंडीशन उसको जो उस पे जो एंटीबायोटिक्स का हमने छिड़काव किया है वो डायरेक्टली जब ह्यूमन डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं उसको हेल्थ रिस्क ज्यादा होता है इन सच कंडीशन। सो हेल्थ रिस्क ज्यादा होने की वजह से इस रेजिस्टेंस की जो बैक्टीरिया की जो रेजिस्टेंस है ह्यूमन रेजिस्टेंस में, वो अच्छी खासी हो जाती है बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस, कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है नेक्स्ट टाइम से। टॉक्सिसिटी होती है, समटाइम्स एंटीबायोटिक्स टॉक्सिक होते हैं जो हम यूज कर रहे हैं एक्वाकल्चर में, कैन हाई डोज और लो डोज की वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है फिश पे, और फिश पे इम्पैक्ट होने की वजह से डायरेक्टली ह्यूमन पे इम्पैक्ट होता है। कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स वाले फिश खाने की वजह से एलर्जी होती है, जैसे कि स्नीचिंग, मुंह लाल हो जाना, लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज आर देयर। So this is about use of antibiotics. Thank you for watching this video. For next part of this video, go in our playlist and watch there. Be connected with our channel.